السلام علیکم ناظرین، 4TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ پولاورم پروجیکٹ کی تعمیر سے تلنگانہ پر اثر انداز ہونے کا جائزہ لیں۔ تلنگانہ اعتراضات کو آندھرا کے چیف سیکرٹری اور گوداوری ریور مینجمنٹ کو مکتوب روانہ کریں۔ چادر روانہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مساجد اور درگاہوں کے خلاف عدالتوں سے رجوع ہونے والوں کو روکنے کے لیے کام کریں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ تلنگانہ میں میٹانیمو وائرس کا کوئی کیس نہیں، احتیاط برتنے عوام کو حکومت کا مشورہ۔ تلنگانہ یدادری میں پریمیئر ایکسپلوزو کمپنی میں دھماکہ، ایک شخص ہلاک، متعدد زخم۔ اور تلنگانہ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے اپل منڈل کے کوتاپیٹ دیہات میں بنا لائسنس کے چلائی جا رہی میڈیکل ہال پر بولا دھاوا۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیومیکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیومیکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامر، ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر، سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، crafted just for you، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ارادہ آپ کا، خدمت ہماری۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کرتے ہیں خواہش مند افراد کے لیے سنہرا موقع۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ بکنگ پر 5,000 کا ڈسکاؤنٹ پائیے۔ ہر ماہ 4 گروپس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قریب ترین رہائش، تینوں ٹائم حیدرآبادی لذیذ کھانا، ڈائریکٹ فلائٹ، AC ٹرانسپورٹ کی سہولت اور 5 لیٹر زمزم۔ بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ، وجے نگر کالونی، کراس روڈ، حیدرآباد۔ اور اب
पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के असरात पर IT की हैदराबाद की टीम के साथ रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में महकमे आबपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रियासती हुकूमत के मुशीर आदित्यनाथ दास ने भी शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि 1 माह में जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने IT की हैदराबाद टीम के साथ तालमेल के लिए खुसूसी अफसर का तकर्रुर करने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर से भद्राचलम मंदिर को खतरा लाहक है, इससे मुताल्लिक़ जामे तफसीलात हासिल करें। ओहदेदारों ने बताया कि आंध्र प्रदेश की जानिब से गोदावरी नदी पर शुरू किए गए प्रोजेक्ट से भी वज़ीर आला को वाकिफ़ करवाया गया है। ओहदेदारों ने कहा कि सैलाब के पानी की बुनियाद पर बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट की मंजूरी भी हासिल नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना के एतराज़ात से आंध्रा हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को वाकिफ़ करवाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर ज़रूरी हो तो गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के साथ साथ मरकज़ी वज़ारत आबी तवानाई को भी मकतूब रवाना करें। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर रवाना की गई चादर पर एक शेर का हवाला देते हुए कहा कि उसने हमारे ज़ख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी कर लगाया तो कांटों की नोक से। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि संघ से वाबस्ता हर तंजीम मुस्लिम इबादतगाहों और खानकाहों को लेकर अदालत से रुजू हो रही है। हर तरफ खुदाई का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म अगर चाहें तो इस तरह की सरगर्मियों पर रोक लगा सकते हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। पार्लियामेंट से मंजूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मोदी हुकूमत का कोई मौक़िफ़ नहीं है। चादर भिजाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चादर तो रवाना कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात के लोग मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ अदालत से रुजू हो रहे हैं। यहाँ तक कि अजमेर की दरगाह के खिलाफ भी लोग अदालत से रुजू हो गए। अगर मोदी हुकूमत संजीदा है तो उन्हें इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए काम करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे ज़ख़म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे ज़ख़म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये ख़बरस्तान नहीं है, तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जहाँ से प्रधानमंत्री अपना MP का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंकशाफ किया कि दिल्ली में उन तमाम हल्क़ेजात में जहां मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है वहां दिल्ली के कचरे को लाकर फेंका जा रहा है। केजरीवाल के दवाखाने के दावे को मज़ाक़ ख़ैज़ करार देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मुसलमानों के इलाकों में तरक्की के केजरीवाल के दावों को भी बैरिस्टर ओवैसी ने खलई खोल दी। नहीं, देखिए, एक बात आपको हम बता रहे हैं, तुष्टीकरण का जो आप बात कर रहे हैं,
दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज ख़ास तौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए, मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए वहाँ पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहाँ पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहाँ बनाया तुमने बताओ जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं। और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है, बकवास है। जाकर आप देखिए वहाँ पर जहाँ मुसलमान रहते हैं। चौथी बात यह है कि जो लोग जेलों में हैं उनके ताल्लुक से एक लफ्ज़ तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं, भूल गए उन लोगों को। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, इनके तमाम नेताओं को बेल हो जाती है। और जब दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा था, ठीक है लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, मगर आप क्या करते हैं मुख्यमंत्रियों पर राजघाट पर जाके बड़ी आते हैं आप। मरने वालों को एस ग्रीशिया का जो पैसा देते हैं उसमें भी आप कम्युनलिज्म करते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। रियल डेवलपमेंट जहाँ होने का है, जहाँ पर दलित और मुसलमान रहते हैं, कुछ नज़र नहीं आता हमको। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि हक़ मालूमात एक्ट के तहत उन्होंने 2 दरख्वास्तें दाखिल की थीं और पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी मकानात मुसलमानों को दिए गए हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं एक नहीं 2 से ज़्यादा आरटी एप्लीकेशन डाला हूं, जिसमें हम सरकार से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आपने अर्बन एरियाज़ में और अर्बन एरियाज से हटकर जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए। बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं। देते ही नहीं है, बताते नहीं है। भाई क्या शेयर है उसमें, जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है बताइए। अल्पसंख्यक समाज का, ख़ास तौर से मुसलमानों का देते नहीं है। अब ये दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, मगर असल शेयर क्या है उनका वो नहीं बताना चाहते हैं। अब चुनाव है तो इसीलिए सब करना पड़ रहा है। मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे ये बात मालूम हो रही है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फ़ायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने संभल में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की इंतहा कर दी, जहां 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। वहां शाही जामे मस्जिद के सामने वक्फ की आराजी पर पुलिस चौकी कायम की गई। अरे गोलियां चल के 5 लोगों की मौत हो गई है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें सीने के ऊपर उनको गोलियां लगी हैं, को पीठ पे लगी है, और आप क्या कह रहे हैं? पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ये जेब देता है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक ही समुदाय के खिलाफ जाए? आप इंसाफ करिए। इंसाफ का मतलब तो ये नहीं है कि आप उनको दबाए, उनको डराए। 80 से ज़्यादा बच्चों को तो आप पकड़ चुके हैं, और ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। ज़रा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको ASI का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास व लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए ASI से? बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते हैं उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हैं लोग? एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे, उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है संभल में। सदर मजलिस ने चीन की जानिब से सूरत में कॉलोनियां बनाने और दरियाए ब्रह्मपुत्र पर डैम की तामीर पर मोदी हुकूमत के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत चीन से सरमायाकारी में मसरूफ़ है। चीनी अशिया बड़े पैमाने पर मुल्क में आ रही हैं। कॉलोनियों की तामीर पर ब्रह्मपुत्र पर डैम के मसले पर हुकूमत का महज एहतजाज सिर्फ दिखावा है। ये क्या लैंग्वेज है मोदी सरकार की? हम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, फिर आप उनको बोल रहे हैं कि आके भारत में इन्वेस्टमेंट करो।
फिर आप चाइना से कह रहे हैं कि ठीक है, हमारा जो इम्पोर्ट इम्बैलेंस है चाइना से वो कंटिन्यू होता रहेगा। एक पॉलिसी तो रखिए ना। और हमको ये भी नहीं बता पा रहे हैं सरकार कि वो जो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फ़ौज पेट्रोलिंग करती थी, वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आप जो एग्रीमेंट चाइना से किए उसको ले जाकर यांग से अरुणाचल से मिला दिए। तो ये कोई चाइना की पॉलिसी नहीं है। मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, ये सरकार चाइना से डरती है। आपको हम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट क्या प्रोटेस्ट है? हमारी ज़मीन पर वो लोग ये एक कंट्रीज़ बना रहे हैं और डैम बना रहे हैं, और डैम बनाएंगे तो नुकसान किसको होगा? माने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उस चाइना ने अनाउंस करके, तो खुद बीजेपी वाले कह रहे नुकसान। तो नुकसान हो रहा तो क्या करेंगे? आप खाली ज़बानी बोलेंगे? आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी है, आप इसको क्यों नहीं कर पाते हैं? रोक क्यों नहीं कर पाते इन चीज़ों को आप? मगर आपको चाइना से पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वो महात्मा गांधी के कत्ल वाक़े की तहक़ीक़ात करने वाले कपूर कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लें, जिसमें सावरकर को साजिशी करार दिया गया था। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी ने नौजवानों को फनी तरबियत फराहम करने मजीद 3 नए कोर्सेज शुरू करने का ऐलान किया है। आईजी हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल और टी वर्क्स के इश्तराक से इंडोस्कोपी टेक्नीशियन, प्रोटोटाइपिंग स्पेशलिस्ट और मेडिकल कोडिंग के शोबों में तरबियत फराहम की जाएगी। इन कोर्सेज के बैरून मुल्क काफ़ी मांग है। यूनिवर्सिटी का कैंपस कंदकूर में वाक़ है और नवंबर से कैंपस की तामीर शुरू होगी। ताहम मज़कूरा कोर्सेज बयान करदा इदारों के जरिए कराए जाएंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.yisu.in से मालूमात हासिल कर सकते हैं। दाखिलों का अमल जारिया माह के तीसरे हफ्ते से होगा। चीन में फूट पड़े HMPV ह्यूमन मेटानिमो वायरस का कोई केस तेलंगाना में रिपोर्ट नहीं हुआ है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ व फैमिली वेलफेयर की जानिब से अवाम को किसी इम्कानी सेहत के खतरे से आगाह किया गया है। हुकूमत तेलंगाना इस सिलसिले में हुकूमत हिंद के मुख्तलिफ शोबों बशमूल वजारत सेहत से इस सिलसिले में राब्ते में है। इस नई वबा की अलामतों को पेश करते हुए महकमा सेहत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की सलाह दी है। मेटानिमो वायरस की अलामतों में सांस का फूलना, आम नौइयत की सर्दी, फ्लू शामिल हैं। ये किसी भी उम्र के अफराद में फैल सकता है। अवाम से कहा गया है कि खांसते या छींकने के वक्त दस्ती, रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें। वक्तन फ़वक्तन साबुन से हाथ धोते रहें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। पानी अच्छी मकदार में पीते रहें। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अच्छी नींद लें। जाड़े बुखार की सूरत में घर में रहें। महकमे सेहत ने किसी इम्कानी सूरत से इस वायरस से निपटने की तैयारियां कर ली हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना की है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के उर्स शरीफ के मौके पर हुकूमत की तरफ से चादर रवाना की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में अपने हाथों से अकीदत के साथ चादर को रवाना किया। इस मौके पर वज़ीर कोंडा सुरेखा, वज़ीर श्रीधर बाबू, हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो पाशा, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन अज़मतुल्लाह के अलावा कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर खुसूसी दुआ की गई। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से सवाल किया है कि कांग्रेस ने मुअम्मरीन को 4,000 रुपये पेंशन देने का वादा किया था, आखिर इस वादे को कब पूरा किया जाएगा। केटीआर ने सवालात की बौछार करते हुए कहा कि लड़की को महीना 2,500 रुपये कब दिए जाएंगे, फीस बाज अदायगी कब की जाएगी। केटीआर का कहना था कि कांग्रेस हुकूमत वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। वज़ीर आला दरोगोई से काम ले रहे हैं। रियासत इस वक्त दिवालिये का शिकार हो चुकी है। उनका कहना था कि मेडीगुड्डा बैरेज को नाक़िस बताया गया है, लेकिन अगर 5.3 का ज़लज़ला भी आ जाए तब भी मेडीगुड्डा को कुछ नहीं होगा। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाने का हक बीआरएस को नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी तबके को मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस का सदर बीसी तबके का है। धरना चौक खत्म करने की केसीआर ने कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस की जद्दोजहद करते हुए धरना चौक को हासिल किया गया। बीआरएस पार्टी आज इसी धरना चौक पर एहतजाज कर रही है। हनुमंत राव ने कहा कि 10 साल में बीआरएस ने क्या किया है।
कामारेड्डी लिक्रेलेशन पर कांग्रेस पाबंद अहद है। मजालिस मकामी इंतखाबात में बीसी को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए भी तैयार हैं। बीसी के मामले में कांग्रेस पार्टी संजीदा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरक्याती कामों को देख नहीं सकते, इसलिए तनकीदें कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के लीडर ई राकेश रेड्डी ने कहा कि नए साल का कैलेंडर आ चुका है, लेकिन पुराना कैलेंडर बदल जाएगा। कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ पुराना कैलेंडर तब्दील नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुराने साल के त्यौहार हो चुके हैं, लेकिन नई मुलाजमतें नहीं मिली। हाईकोर्ट का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, लेकिन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का कैलेंडर रिलीज नहीं हुआ। राकेश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मुंह ज़बानी खर्च कर रही है, अमल नहीं कर रही है। यूपीएससी के तर्ज पर मुलाजमतों के लिए एलामिया जारी करें। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस के 2 लाख मुलाजिमतों के देने के वादे को 2025 मुकम्मल होने तक इसके मुताबिक जॉब कैलेंडर जारी करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मुकम्मल किए गए करोड़ों रुपए के कामों की तकसीम का हफ्ते को इफ्तिताह अमल में आया। अकबर बाग डिवीजन के पलटन में 3 नई सीसी रोड, गीता रेसिडेंसी में सीसी बॉक्स ड्रेन, अमीन कॉलोनी में सीसी रोड, बाखर बाग कम्युनिटी हॉल के पहले फ्लोर और हाजी सर्विस सेंटर रोड लाइन के पास नए कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में लाई गई है। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर करते हुए उनकी गुलपोशी की। मुतल्लिका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाज भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट की खूबसूरत गिरी के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। शहर के तमाम डिवीजन्स में अहम मकामात को खूबसूरत बनाया जा रहा है। चादर घाट चमन की नई सूरतगिरी के लिए भी रुकन असम्बली अहमद बलाला सरगर्म हो चुके हैं। रुकन असम्बली ने हफ्ते को बलदी, बरकी, टाउन प्लानिंग और ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों के हमराह चादर घाट चमन का दौरा किया। चादर घाट के पास मुसलसल ट्रैफिक बहाव के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया गया। कदीम चमन की नई सूरतगिरी के लिए अहदेदारों को हिदायत दी गई है। फातिमा नगर में बरखी शौक लगने से फौत हुए 16 साला नौजवान के विरसे को कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंजूरा 5 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि अब्दुल मुकीत नामी नौजवान हाई टेंशन बरखी तार की जद में आकर फौत हो गया था। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की बरवक्त नुमाइंदगी पर इमदाद मंजूर की गई। मरहूम नौजवान के अफराद खानदान ने कायद मजलिस की नुमाइंदगी पर इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने एक फलाही अबनात फाउंडेशन के ताउन से नौजवानों के लिए मुख्तलिफ हुनरमंदी के मुफ्त कोर्सेस का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसके जरिए नौजवानों को मुल्क व बैरून मुल्क रोजगार के बेहतर मौक़े मैसर हो सकते हैं। मलकपेट के अकबर बाग डिवीजन में बाखर बाग कम्युनिटी हॉल में इन कोर्सेस का आगाज किया गया। डाटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्टिव डेवलपमेंट और दीगर कोर्सेस की नौजवानों को माहिरीन के जरिए मुफ्त तरबियत दी जाएगी। कोर्सेस की तकमील के बाद सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और हुसूल रोजगार में उनकी मदद की जाएगी। रुकन असम्बली ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कानूनी तौर पर कोर्सेस को सीखने 1000 रुपये फीस देनी पड़ती है। उन्होंने अबनात फाउंडेशन के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन कोर्सेस की मुफ्त ट्रेनिंग का एहतमाम किया है। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल के हल के साथ बेरोजगार नौजवानों को बासलाहियत बनाने और उन्हें रोजगार से मरबूत करने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर अबनात फाउंडेशन के जिम्मेदारान, कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुसैनी आलम की शुबे सियासियात की जानिब से सरकर्दा मौर्रिख व मुसन्निफ सैयद उबैदुर्रहमान ने कुरान वस्ता के नज़रियात पर मुखातिब किया। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद उबैदुर्रहमान कई किताबों के मुसन्निफ हैं। मुसन्निफ से मुलाकात प्रोग्राम में उन्होंने फ़लसफ़ी हज़रत इमाम गज़ाली, मौर्रिख अल-बैरूनी, अल्लामा इक़बाल, इब्न खुल्दून और अंसारवी के सियासी नज़रियात पर बहस की और इस मौजू पर तालिबात के सवालात के जवाबात भी दिए। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अयप्पा चन्नम्मा ने सदारत की और सदर शुबे सियासियात डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मौर्रिख व मुसन्निफ का तारुफ पेश किया। इख्तितामी इजलास में वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर बी लता के अलावा दीगर शोबों के सुदूर प्रोफेसर्स ने भी शिरकत की। कुल हिंद सनती नुमाइश, जिसका जुमा को इफ्तिताह अमल में आया है, नुमाइश में तकरीबन स्टॉल्स मुकम्मल हो चुके हैं और पहले ही दिन से नुमाइश देखने वालों का हुजूम देखा गया।
हफ्ते को कई स्टॉल्स के रस्मी इफ्तिताह अमल में आए। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स के लिए मुफ्त पार्किंग का नज़म किया गया है। अवाम को तरगीब दी जा रही है कि वो ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मेट्रो, रेल या आरटीसी बसों का इस्तेमाल करें। आरटीसी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर नुमाइश स्पेशल बसेस चलाई जा रही हैं। नुमाइश सोसाइटी के अरकान के हफ्ते को अवाम के रद्द अमल पर इत्मीनान का इजहार किया है। कुल हिंद सनती नुमाइश में मशहूर मारूफ हलीम तैयार करने वाले पिस्ता हाउस का स्टॉल साबिक रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के हाथों अमल में आया। पिस्ता हाउस के हलीम न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया के करीब तमाम ममालिक में भी शोहरत रखती है। पिस्ता हाउस की हलीम अपने जायके में बेमिसाल है, जिसकी तैयारी में पोटले का गोश्त और असली घी, मसालेजात माहिर और तजुर्बेकार बावर्चियों की खिदमत से तैयार की जाती हैं। मोहम्मद मूसा ने मीडिया को तफसीलात बताई कि एक प्लेट हलीम 300 रुपये, फैमिली पैक 1250 रुपये, हॉट बॉक्स 1350 रुपये में दस्तियाब है। पिस्ता हाउस के प्रोप्राइटर एम ए मजीद और उनके फर्जंदान ने मेहमानों का इस्तकबालिया किया। पिस्ता हाउस की जायकादार और लजीज हलीम से नुमाइश का मुशाहिदा करने वालों की तफरीक को 4 चांद लग जाते हैं और ये मौका सिर्फ माह रमज़ान मुबारक के बाद कुल हिंद नुमाइश के मौके पर मैसर आता है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी नुमाइश शुरू होती है तो पिस्ता हाउस की हलीम का स्टॉल होता है। तो हम लोग पिछले 14 ईयर से यहाँ पर आप सबकी खिदमत के लिए, और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स का डिमांड है कि पिस्ता हाउस की हलीम जब लोग नुमाइश घूमने आते हैं तो हलीम उन लोगों को चाहिए। तो हम लोग वही हर साल डिमांड रहती है कस्टमर्स की ज़्यादा, तो हम हर साल की तरह इस साल भी नुमाइश में पिस्ता हाउस हलीम का स्टॉल है। इसके साथ साथ चाय का भी स्टॉल है और आप लोग सब लोग आइए, पिस्ता हाउस की हलीम खाइए, नुमाइश घूमिए। 300 रुपीज़ पर प्लेट है और फैमिली पैक भी है, हॉट पॉट भी है। दोपहर में 4 बजे से रात में 10:30-11 बजे तक आपको हलीम मिलेंगी इंशाल्लाह। तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन अपनी जमानत की शराइत की तकमील के सिलसिले में हफ्ते को नामपल्ली अदालत में पेश हुए। अल्लू अर्जुन को अदालत की तरफ से मुस्तकिल मशरूत जमानत दी गई थी। उन्हें 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन उन्हें उबूरी जमानत मिली थी। अदालत ने 50,000 रुपए के 2 शख्सी मचलकों पर अल्लू अर्जुन को मुस्तकिल जमानत दी है। ताहम हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की हिदायत दी है। तेलंगाना की जिले यादाद्री में वाक़ प्रीमियर एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में धमाके की वजह से एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक पैदाकुंदर के में हफ्ते की सुबह यह धमाका हुआ। भुवनगिर के डिप्टी कमिश्नर पुलिस राजेश चंद्रा के मुताबिक 2 वर्कर्स केमिकल्स को मिला रहे थे। इस दौरान अचानक धमाका हुआ। इस धमाके में दोनों वर्कर्स जख्मी हुए थे और एक वर्कर कनकैया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जांबर न हो सका। दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। कंपनी की इंतजामिया की तरफ से सरकारी तौर पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने उप्पल मंडल के कोत्तापेट देहात में बिना लाइसेंस के चलाई जा रही मेडिकल हॉल पर धावा करते हुए नकली एल्शियम D3 टैबलेट्स को जब्त किया है। इसके साथ साथ कोकटपल्ली अल्लाहपुर में वाक़ई एक और बिना लाइसेंस चलाई जा रही मेडिकल हॉल पर धावा किया गया और यहां से भी अद्वियात को जब्त किया गया। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने अवाम से अपील की है कि अगर कहीं भी नकली अद्वियात या फिर जायद कीमत पर अद्वियात फरोख्त हो रही हैं तो टोल फ्री नंबर 1800-599-6969 पर इत्तला दी जा सकती है। मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में 1 जनवरी को हुए हिट एंड रन मामले में जख्मी नौजवान जख्मों से जांबर न हो सका। तफसीलात के मुताबिक 1 जनवरी को मोतीला नगर MLA कैंपस ऑफिस के पास नामालूम गाड़ी अनिल नामी नौजवान को टक्कर मारकर फरार हुई थी। जख्मी हालत में अनिल को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, ताहम अनिल आज सुबह जख्मों से जांबर न हो सका। महलूक नौजवान के अफराद खानदान का कहना था कि इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक हादसे के जिम्मेदार गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मीरपेट पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।
मेडचल की बोडुप्पल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हदूद के रामकृष्ण नगर में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शोरूम में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ईवी स्कूटर कंपनी में अचानक आग लगते ही सनसनी देखी गई। फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर लिया गया। आग पर काबू पाया गया। आग लगने की इस वाक़े में भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है, ताहम अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। रियासत तेलंगाना में गांजे की मुंतकिली और फरोख्त के खिलाफ पुलिस और आबकारी की टीमों का क्रैकडाउन जारी है। हफ्ते को खुतबुल्लाहपुर हदूद के गाजोला रामम में अम्बेडकर नगर में गांजे की मुंतकिली में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 1.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स सलाम के घर पर धावा करते हुए गांजे का पैकेट जब्त किया गया। STF की तरफ से यह कार्रवाई की गई। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5,000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर से तेलंगाना पर असरअंदाज होने का जायजा लें। तेलंगाना एतराज़ात को आंध्रा के चीफ सेक्रेटरी और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट को मकतूब रवाना करें। चादर रवाना करने से कुछ नहीं होगा। मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ अदालतों से रुजू होने वालों को रोकने के लिए काम करें। सदर मजलिस बैरिस्टर वैसी का रद्द अमल। तेलंगाना में मेटानेमो वायरस का कोई केस नहीं, एहतियात बरतनी, अवाम को हुकूमत का मशवरा।
تلنگانہ یدادری میں پریمیئر ایکسپلوزیو کمپنی میں دھماکہ، ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی۔ اور تلنگانہ ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے اپل منڈل کے کوتاپیٹ دیہات میں بنا لائسنس کے چلائی جا رہی میڈیکل ہال پر بولا دھاوا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4TV خبر نامے کا یہی اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔